Recording has been started. So first of all, we will look at Nifty and small cap. देखो निफ्टी ने क्या बनाया है? What Nifty had made here? A doji at a top. Doji is the first sign of reversal. Means it is sign of indecision. यहाँ पे डिसीजन नहीं हुआ है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है. It is an indecision sign. And when a doji forms at a certain level, like यहाँ पे बॉटम पे बन चुका है, यहाँ पे टॉप पे बन चुका है, so you need to be cautious or you need to be active. You should wait for more confirmation there. Okay, but what you can see, if you see the levels का क्या दिया गया है? breakout. The levels has been broken out. First we have been cautious here. हमारी जो मेथड है कैंडल बाय कैंडल मेथड, उस हिसाब से the method which we are using candle by candle, here is a sign that given us as a weakness sign. If you see from this day onwards, last 4 days, there is very less or a very selective buying force in market. What we can see the uh, what we market break here. If you see here, what you can see from Nifty 50 in the last means second last half session of last Friday, there was a buying, and you can see there are 310 advanced stocks and 188 decline stock. Why there was a buying? If you see the chart, you can see clearly we are past above the resistance, but still we are in a range of resistance. Okay, so it should be, we should be more cautious sir. अगर small cap को देखा जाए, but small cap has not given a breakout. Yesterday मैंने बोला था आपको, हम दोबारा return entry लेंगे. We will again take entries. Just I need one more confirmation. What that confirmation was? To close above previous day high. If you see, Nifty is more bullish. We can see why there is a buying in large cap, but currently small cap and mid cap are in pressure. But if you look at mid cap chart, mid cap chart is also at a resistance point. Mid cap has not given a breakout, and small cap has not given a breakout. They are both still in resistance level. So what we are seeing, there is certain or more sellers are here. So you should be cautious here while trading in large position size in smaller mid cap stock. If you are in large cap, then you can take up easy breath. So let's see the sectors now. So where is first real estate sector that went bearish. That's why I added here in a bearish list from here. यहाँ से जैसे ही ये ऊपर की ट्रेन लाइन का इसने नीचे की तरफ आने का झुकाव दिया, from that point of onwards I am making this sector as a bearish sector. But अभी क्या हुआ है, this trend line from lower side, this is the range of reality index. Okay, if you see here, यही से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, इसी को ऐसी तरह से एक्सटेंड कर दो, तो द नेक्स्ट स्टेप फॉर रियल एस्टेट स्टॉक्स इज दिस लेवल. ओके, so there is so much space left, so you should be looking for stocks from real estate sector. Auto sectors giving a good breakout. If you see, this is a very important level. First resistance, second, then there is a breakout, but that has not sustained. Again came down. Then there is a tough fight here from in between buyers and sellers. Now there is a shakeout candle. Shakeout candles means breaking previous day high and previous day low of a candle. Shakeout candle. Then we have a direction here, upside direction. So you should be bullish in auto sector. So this is how there are many sectors are there. बट आज हमें क्या ढूंढना है, नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे खासे सेटअप्स.
So वो कौन से सेक्टर में से आएंगे फिर? Which sectors are currently on reversal? So let's look in our list. First of all, what I told you. So we will have a sharp eye on this stock. Uflex, Comsofirst, Jindal Poly, Garware Tech, Polyplex. So in which अगर इसको देखा जाए तो ये जैसे ही इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट करेंगे, अभी देखो इसको लाइन बना रहे थे, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया, अगेन ऊपर अगेन रिटेस्ट के लिए आए. इफ यू सी दे आर मेकिंग न्यू पैटर्न हियर. व्हाट दे आर मेकिंग? नया पैटर्न बना रहे हैं. दे विल टेक support here, then again go and take resistance, then again came back to support, and then there will be a rally here. You should focus in this stock. Okay. Okay. Zentech, Solar, and Paras are reversing. In FMCG, see this type of moves. Which stock is that? Name is Tasty Bites. That is from FMCG sector. Currently, avoid recycling sector, AMS, Ganesha, Ecosphere, Gravita, POCL. Avoid this because they will test this level, then go up again. Now completely avoid which sector, or completely not. You should pick selective picks from here. That sector is gold, diamond, jewelry sector. If you see Goldium International already given a good move. So avoid taking late entries now. Okay, you can book. All my target are already hit. Okay, you can book here, or you can book partial and trail. TPZ also has made a quick run, so you should stop buying jewelry now, or you should focus on other sector now. Like fertilizers are looking quite good now. If you look at fertilizer stocks like RCF is set up in quite well. If you see this box, this is a low risk box setup. 1 minute here. A reversal and a low risk setup in RCF or in many fertilizer stocks. So fertilizer should be in our focus. So I'm constantly watching this sector. Don't worry, I will give the right point, right entry point. But the most important sector yesterday was alcohol. If you see the Global Spirit was on my radar also. See this. It was what happened here. ये जैसे ही ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस था इसका, एंड इट इज टेकिंग सपोर्ट हियर मल्टीपल टाइम्स. यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिए, यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए था, बट देखो यहाँ से ऊपर जाके इस ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस लिया. जैसे ही स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ, उसमें डायरेक्ट एक वर्टिकल बाइंग आई एंड देयर वाज अ 20% अपर सर्किट. ओके, so the movement was very fast that we couldn't share in the group. But we already told few days before of this kind of big move in alcohol sector. I told that alcohol in alcohol sector. I have seen operators positions have been built up. If you see, I have told here, and GM Breweries was also given 100 or more than that move. If you can see, I have also told associate alcohols here. इसमें ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे देखो यहाँ से ऊपर चला गया, then retest and again it is ready to go up. Radico Khetani is important for us. Why important is? See this. Radico Khetan form. अभी किस सेक्टर पे फोकस करना है हमें? अल्कोहल पे. लास्ट टाइम which sector we have focused? Diamond and jewelry. This is how a sector rotation happens. So see this. Here is a monthly breakout of Radico Khetan, a alcohol stock. If you see, there's a big candles and there's a quite sideways move. Last year December to August this year, there are nearly 8 to 10 months of sideways move or accumulation phase. Now it has given a good breakout. अगर यहाँ पे रिटेस्ट लेके थोड़ा सा अगर छोटा सा सेटअप बनेगा तो हम we will enter in Radico Khetan Limited. Okay. Okay, let's see now rest of the monthly stocks. Yesterday मैंने ये ले चुका हूँ मैं. Yesterday I thought that I should give in the group, but it has already in UC now. So let's see and
देखो इसका क्या हुआ है, इसका ब्रेकआउट है, अगेन रिटेस्ट एंड अगेन गोइंग अपसाइड, पिक कर लिया करो। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे, बट अभी हमारे पास कौन सा सेटअप है, हमने बेटिस्ट लिया हुआ है सुलावाइनेट्स। सी सुलावाइनेट्स में कैसा था, एक बड़ा बेस बना, हमने कई बार इसमें ट्रेड किया था, यहाँ पे बेटिस्ट लिया था, उसके बाद एक मूव आया, अगेन इन साइड इज एंड इसने एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे बॉक्स बना, उसका एक ऊपर के साइड एक मूव अच्छा खासा आया, ये मूव कंटिन्यू होकर 578 तक जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या यहाँ पे क्या हो सकता है। ओके, होल्डिंग कंपनीज में भी ऑपरेटर हुआ है। टाटा इन्वेस्ट में भी देखा आपने लास्ट वीक में कैसा मूव आया था। तो वी हैव टेकन पोजीशन इन जेएसडब्ल्यू होल्डिंग। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जेएसडब्ल्यू के सारे स्टॉक, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग में एक अच्छा खासा मूव आएगा। हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, जस्ट 7100 का स्टॉप लॉस है हमारा, ये इतना ही हमने यहाँ पे एंट्री ली है, इतना ही हमारा रिस्क है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग 8000 के लेवल्स इन अ वीक। स्टॉप लॉस स्मॉल छोटे रिस्क के साथ हमने बड़ा यहाँ पे सेटअप लिया है। सो लेट्स सी अनदर सेक्टर नाउ। I'm seeing that pharma has been doing quite good from last week. So we need to find some good quality setup from pharma now. If you see, the KPL is looking good, but it is a BSC stock and already given a massive breakout. If you see, it is again ready for a big run. Quality Pharmaceuticals Limited. Again, see here, a low risk entry point will be has already formed here. If you see, it is quite good above 789 and we should take a stop of 700. देखो BSC स्टॉक में बड़ा रेंज होगा, in BSC stock there will be bigger stop losses. Okay, so that's why you should take small position. उतनी ही साइज का पोजीशन लो जितना आप स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो। इफ यू अफोर्ड स्टॉप लॉस ऑफ स्ट्राइड्स फार्मा आल्सो, स्टार हेल्थ आल्सो, देयर आर मिनी स्टॉक्स या, सो आप उसी तरह से देखो। ओके, लो रिस्क का सेटअप मैं आपको दे दूंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। स्ट्राइड्स फार्मा आई विल आल्सो लुक एट हियर। पीपीएल फार्मा देखो एक क्या बेस बनता है इसमें, ऑन मंथली चार्ट देयर वाज अ डायरेक्ट फॉल एंड यू कैन सी अ बिगर accumulation. Two things can happen here. Either it will go downside and form a W pattern and give a breakout, or here some inside candle and form like a triangle pattern and give a breakout. So two things can happen here. So you should prepare for this. And from this are Strides Pharma. Strides Pharma, if you see Strides Pharma, what we can call it, we can call it a stage 1 stock. आपको मैंने स्टेजेस एक्सप्लेन किए थे लास्ट कुछ सेशंस पहले। सो दिस इज इन स्टेज 1। स्टेज 1 का जब भी ब्रेकआउट आता है वहां से मिनिमम 100% का रिटर्न आता है। मिनिमम कितना आता है, 100% का, 80 से 100%। स्टेज 1 ब्रेकआउट एक बड़ी रैली आती है। आई हैव एक्सप्लेन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4 क्या होता है। जैसे आईएक्स में मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। आईएक्स में क्या हुआ था आपको मैंने बताता हूँ आपको एक बार दोबारा। आईएक्स क्या हुआ है, आईएक्स ने दोबारा स्टेज में एंटर किया है। जस्ट लुक एट अ वीकली चार्ट ऑफ आईएक्स। दिस इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन। ये क्या है, एक्यूमुलेशन है। इसको हम एक स्टेज में लेंगे। ये इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन हुआ है। बिग मनी हैज एक्यूमुलेटेड दिस स्टॉक हेयर। देन सेकंड स्टेज इज रैली। रैली कितनी बड़ी आई है यहाँ पे देखो, the rally was almost 300%. After that 300%, you can see highest volume selling candle here. And the stock has entered in stage 3, where distributions where good news comes and distributions happen. Retailers get trapped here. And stage 4 is decline. Again, after that stage, again there will be a stage 1. अगेन यहाँ पे क्या हुआ, अगेन देन उसके बाद अगेन यहाँ पे एक नया स्टेज बना। अगेन देयर वाज अ स्टेज 1 एक्यूमुलेशन, अगेन स्टेज 2 में इसकी एंट्री। अगेन यहाँ से
100-200% की रैली होगी, अगेंस्ट टेस्ट होगा। दिस इज हाउ वाइकॉफ स्टाइल ऑफ मेथड वर्क्स। ओके, दिस इज हाउ स्टेजेस ऑफ मार्केट्स वर्क। तो वही क्या हो रहा है, स्ट्राइड्स फार्मा में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। अभी लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट वीक से इसमें एक अच्छा खासा मूव था। तो हमें लो रिस्क का एक सेटअप चाहिए। लो रिस्क का सेटअप कैसा होता है, जहां पे एक बेस क्रिएट होता है, वेयर देयर इज अ बेस क्रिएटेड। इफ यू सी इन स्ट्राइड्स फार्मा, देयर इज अ बेस क्रिएशन हियर। सी, एक मूव आया, उसके बाद एक बेस क्रिएट हुआ, हम यहाँ पे एंट्री लिए, तो हमारे पास ये जो बेस है ना, इस बेस का नीचे का लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगा। देयर इज अ इंश्योरेंस हियर। स्टॉप लॉस इज लाइक अ इंश्योरेंस। ओके, you have a risk appetite here, then you can take a reward. Actual 3 times of this should be better. 1:3 यहाँ पे आपको मिल सकता है इजीली। आप टारगेट कर सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए बड़ा टारगेट रख सकते हो स्ट्राइड्स फार्मा में। ओके, अभी मार्केट का स्टेज क्या है, करंटली मार्केट इन स्टेज ऑफ, सी, रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, इस वजह से मैं आपको लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक नहीं दूंगा। हम वी विल प्ले एट शॉर्ट टर्म ओनली। शॉर्ट टर्म में हमें प्लान करना है, थोड़ा सा रोकिए। इफ यू गेट मोर कंफर्मेशन, वी विल टेक गुड इंटरेस्ट विद बिगर साइजेस। ओके, जस्ट वेट फॉर सम कंफर्मेशन है। Okay, let's see, this stock also is looking good, but it's fundamental need to see. So in this pharma sector, one stock is very good, Kaplan Point Laboratories. आपको इफ यू नो, मैंने आपको एक स्टॉक दिया था, जीना सिको लिमिटेड। किसको याद है? बहुत लोगों के पास है भी जीना सिको लिमिटेड। होप यू रिमेम्बर। मैंने ये स्टॉक को मल्टीबैगर बोल के दिया था आपको। देखो यहाँ पे दिया था 300 के लेवल पे। अभी स्टॉक 2 बार स्प्लिट हो चुका है, सो दैट्स व्हाई दिस प्राइस इज एडजस्टेड। चार्ट भी इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है। तो इस लेवल पे मैंने दिया था 300 के, अभी ये लगभग 1400 के लेवल पे चल रहा है। एक ही साल हो चुका है। इन 1 ईयर इट द स्टॉक हैज गिवन नियर अबाउट 350% रिटर्न इन जस्ट 1 ईयर। सो देखो यहाँ पे अगेन एक बेस क्रिएशन हुआ है। दिस इज एसएमई स्टॉक। एसएमई की लिस्ट से अभी चला गया मालूम नहीं मुझे, लेट्स सी। देयर इज अ बेस क्रिएशन इन दिस स्टॉक ऑल्सो, सो यू कैन ट्रेड हियर। एंड द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी और द पर्सनल इंटरेस्ट, जो भी एंट्री मैं लूंगा वो आपको शेयर की जाएगी ग्रुप में, फ्रॉम फार्मा सेक्टर एंड अल्कोहल सेक्टर। 2 सेक्टर आपको बुलिश है नेक्स्ट अपकमिंग वीक के लिए। शुगर सेक्टर है, बट शुगर सेक्टर आई एम अवॉइडिंग। आई एम वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू शुगर इंडस्ट्री, बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैश मिलते हैं। न्यूज जैसे रेजिस्टेंस पे आता है, ब्रेकआउट देता है, again there will go bad news and stock will be falling. So that's why there are many traps in sugars. So so that's why we should avoid it. ABDLs from IPO setups, ABDL is looking very good. मैंने यहीं पे बोल दिया था, अगर आपको याद है, हमने यहाँ पे BTST लिया था, उसके बाद ये 2 दिन साइडवेज था, तो आपने बोला कि सर इसका क्या करें। मैंने बोला कि ये स्टॉक जरूर जाएगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ये स्टॉक जरूर जाएगा। देखो वहां से इसमें एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आ रही है। नाउ दिस स्टॉक हैज ब्रोकन इट्स आईपीओ हाई, बेस हाई प्राइस। सी, जो फर्स्ट यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद एक हाई बना है, उस हाई को भी इसने क्रॉस कर लिया है। सो इसमें अच्छा खासा मूव होगा। डायरेक्ट एंट्री मत लो, इसमें बेस ओपन होने दो। जब भी आपको प्रीमियम ग्रुप में दिया जाएगा तभी एंट्री लेना है। अगर आपने खुद की इस पे लिया है तो उसको एक बार चार्ट मुझे शेयर करके, एक बार एंट्री पॉइंट शेयर करके बता देना। यात्रा ऑनलाइन में भी अच्छा खासा सेटअप बन रहा है। देखो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप डबल ड्राइव पैटर्न बन चुका है, उसका एक अच्छा खासा वॉल्यूम ने भी कंफर्मेशन दिया है, तो इसमें भी एक अच्छा खासा बन रहा है। तो लास्ट वीक मैंने बोला था आपको, कौन सा स्टॉक फ्रॉम दिस सेक्टर कहा गया, हाँ, क्रोनोबॉक्स। देखो यहाँ पे मैंने इस पे शेयर किया था, ए किस पे शेयर किया था, आई हैव शेयर दिस ऑन ट्विटर एंड ग्रुप ऑल्सो।
देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि इसमें बड़ा मुंह आएगा, उसके बाद एक बड़ा मुंह आ चुका है 20%। आपके पास है तो अभी बुक कर लो, नहीं तो यू कैन ट्रेल विद बाय कैंडल। इस बड़ी कैंडल का 50% के पास भी आप ऐड कर सकते हो, यही से ये रिवर्स हो सकता है। आपको मैंने इसके बारे में मेथड भी बताया हुआ है। BLSC होल्ड है जब तक ये इस लेवल के ऊपर है, 234 के ऊपर है, आपको होल्ड करके रखना है, इसमें एक बड़ा मुंह आएगा। ओके। ADSL स्टेट सेटअप में था बट दिया नहीं है। भारती हेक्सा फ्रॉम कम्युनिकेशन सेक्टर इज क्वाइट गुड स्टॉक। कम्युनिकेशन से इंडस टावर पे अच्छा है, बट इट इज इन FNO, सो वी अवॉइड हियर। ओके। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और queries you can ask me. Just this week हम what we can do, if market conditions gets very good, then we can have a good another session on Wednesday. There we will be discussing good setups. बट अभी क्या है, उतनी अच्छी खासी सेटअप्स है नहीं, है तो आप ट्रेड करोगे उसमें ब्रेकआउट फेल्यूर आएगा, क्योंकि मार्केट क्या क्या है अभी, रेजिस्टेंस लेवल पे है, यहाँ ज्यादातर ब्रेकआउट फेल होते हैं। हमें कौन से फेज में बाय करना है, जब भी बेस का ब्रेकआउट आए, जैसे कि यहाँ से नीचे गिर गया, व्हेन एवरीबॉडी इज इन फियर, तब हमें बाइंग करके होल्ड करके रखना है, वो भी अच्छी खासी बेसिस को ट्रेड करके। जब अभी सब लोग ग्रीडी है, आपको यहाँ पे बड़ी पोजीशन साइज ऐड नहीं करनी है, आपको वेट करना है। मार्केट में पैसा वही बनाएगा जो वेट करेगा, पेशेंस से अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करेगा, ना कि किसी भी ट्रेड को, रैंडम को ट्रेड को उठा के उसमें बड़ी पोजीशन साइज ले लेगा। दिस इज नॉट यू कैन मेक मनी, यू शुड ऑलवेज वेट। Okay, any IT stock like Mustic. If you want mid-cap IT stock, then I can give you much better. Let's look at a weekly charts of mid-cap IT. First, large cap. If you see large cap, SCL Technologies given a breakout, but avoid it. TCS, avoid it. Wipro is setting up quite well. Wipro is setting up quite well. If you see here, देखो last time इसने breakout दिया था, then direct result gap down, and again retested, and it is reversing. So Wipro is a good setup for, but it is a slow stock. Yeah, let me see about Happiness Mind. Infi also giving breakout. See the mid cap. From mid cap, if you see, Coforge is forming good, but still it's in 2 to 3 weeks inside candles. So wait, and I'm not getting the good vibes from Coforge now. But persistent, you can bet on it. Why persistent? Because it's persistent is persistent in delivering good results. That's why persistent system from mid cap is a must buy. If you see a base created, rally base rally, you can see rally base, and again there will be a rally. So persistent is good. So and emphasis, I would say avoid, wait. OFSS is very good. Why good? Because delivered very fantastic result. If you see, if this base gives breakout, then another there will be 14,000 or 15,000 bills will be coming here. Tata Elxsi gave very fast move, so let's avoid it. Small gap. If we see Megasoft was there, Auropilno Solutions. Let's see, wait here. Mustang is forming pretty good base. Mustang you can trade. If you see it gives a breakout of this level, or it closes about 3,000 level and sustains there, then we can see very fast 4,000. Sonata is reversing side as Netwave. Netwave I have given as last time. Now it has achieved all the targets. It is quite good stock also. So let's see KPIT, MO shape. All solution looking good, but still wait. Not a good setup. Happiest minds avoid. देखो, जो स्टॉक के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। क्या आपको कौन से स्टॉक देखनी है मालूम है क्या? जिस जस्ट फोकस वन थिंग, आपको अगर पैसा कमाना है मार्केट में स्विंग में, तो आपको कौन से स्टॉक को हाथ लगाना है? लाइक सी, जैसे स्ट्राइड्स फार्मा को हम लिखेंगे, नहीं तो चलो हम क्या करेंगे, DYCL को लिख लेंगे। तो आप कोई भी कमेंट कर लो, हम उसको देखेंगे। क्या होना चाहिए? उसका सेल्स का ग्रोथ होना चाहिए, 100 करोड़ सेल्स देन टू 200 करोड़ सेल्स।
In last, there is a continuous growth. If you see in from 5 crore profit to 12 crore profit, nearly all time high पे होना चाहिए. ओके, सिक्वेंट देखेंगे. सिक्वेंट साइंटिफिक 4000 करोड़ मार्केट कैप, स्टॉक का पीई क्या है 191 है, करंट इंडस्ट्री के पीई क्या है 35 है, हाईली ओवर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू पीई रेशियो. आरओसी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल, इसके देखो, इसके ऊपर देखो 0.44, वेरी लेस, ये तो माइनस में आ रही. अवॉइड, फेस वैल्यू जस्ट 2 का है, फंडामेंटल्स आर क्वाइट बैड. स्टॉक अगर देखो तो टेक्निकली ये ब्रेकआउट दे रहा है, सेल्स में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है. देखो जहां कहीं पर भी ग्रोथ नहीं है, देर इज नो ग्रोथ है. इसी वजह से इसका ही अपोजिट डीएसएसएल देखो एक बार. डीएसएसएल देखो क्या है यहाँ पे. डीएसएसएल में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, 30%, 20%, 30%. स्टॉक भी क्या हुआ है, स्टॉक देखो कुछ भी नहीं था स्टॉक. ये स्टॉक फ्रॉम लास्ट अगर कुछ इयर्स का देखो तो ये स्टॉक 2030 पे था, अभी जस्ट 2 साल पहले अभी क्या हाल है, 1600, 1700, 1500 पे. सो डीएसएसएल का देखो आरओसी कितना है 44%. इंडस्ट्री का स्टॉक का भी अभी भी इतना भागने के बाद भी 33% है, 40% इंडस्ट्री का है. सो दिस इज हाउ टाटा मोटर, यस, ऑल द टाटा स्टॉक्स आर रनिंग. सो टाटा मोटर, ऑटो इंडस्ट्री भी अच्छा है, टाटा मोटर भी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है. ओके मैम, चलो. सो यहाँ पे देखो बुक वैल्यू भी 124 का है, आरओई देखो 41% है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ गुड. जो गुड लेवल बोलता है ना 15%, उससे भी 3 to 4 टाइम्स है. तो आपको ऐसे स्टॉक देखने हैं जिसका आरओसी एंड आरओई ज्यादा हो, स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से कम हो. ओके, प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50 और 60% हो, डेट टू इक्विटी लेस देन 1 हो, और जिसका सेल्स कंटिन्यूस इंक्रीज देखो 150 to 300, ऑलमोस्ट डबल्ड. ऑल टाइम हाई देखो, सेल्स क्या है ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट क्या है ऑल टाइम हाई, ईपीएस क्या है ऑल टाइम हाई, मार्जिन क्या है ऑल टाइम हाई, स्टॉक क्या है ऑल टाइम हाई. देखो सब कुछ टेक्निक फंडामेंटल सब कुछ ऑल टाइम हाई है, टेक्निकली क्या होगा, सब कुछ ऑल टाइम हाई होगा. फंडामेंटली एवरीथिंग इज ऑल टाइम हाई, टेक्निकली एवरीथिंग इज ऑल टाइम हाई. दिस इज हाउ यू शुड लुक फॉर अ स्टॉक्स. ओके सर, ओके. टेक्निकल ट्रेड कर सकते हो, पर टेक्निकल ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करो, किया करो. अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो फंडामेंटल भी देखो. ओके, सिक्वेंट साइंटिफिक मैंने भी एक बार दिया, पर टेक्निकली दिया है, फंडामेंटल नहीं दिया था. टेक्निकली देखो इस लेवल के ऊपर है, अगेन देखो इसमें थोड़ी सी अभी यहाँ पे एक सेलिंग आई है और बाइंग आई है, बट व्हाट वी कैन नॉट से, इट्स अ बेस. इस बेस का हाई ब्रेकआउट होता है तो आपको ट्रेड करना है. ओके, तब तक अवॉइड करो. एनीथिंग, एनी अदर क्वेश्चंस? तो अभी ब्रेकआउट सर इसमें माइंडटेक, ऑलमोस्ट. माइंडटेक का क्या होगा? हाँ, माइंडटेक मैंने लास्ट टाइम लिया था शायद. अरे हम आईटी स्टॉक्स देख रहे थे, लेट्स रिज्यूम दैट अगेन. देखो माइंडटेक का क्या है, देखो माइंडटेक का हम पहले फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल बेसिस के बारे में उसके बाद आएंगे. माइंडटेक, इफ यू सी हियर 16% and 13% is good. Industry pre is कम है, it is good. Okay, debt to equity debt almost negligible. Okay, so fundamentals are good. It's a small cap company, less than 1,000 crore. So let's see now the sales growth. Oh, sales growth is pretty good. Why pretty good? See, 37 to 108, sales is all time high. Yeah, OPM is all near about all time high, but not all time high. But if you see, profit is about near about all time high, but not all time high. Okay, EPS is also good. Let's see, is there is FI holding is increasing? Yes, FI recently increased the holding, again reduced it. But first time there is a DI holding it has been added. Promoter has been stable, just just small hiccups are here. So in fundamental we cannot call it great, but we can call it good. And technical terms, if you see there is a rally. Oh, 1 minute. Taken. See, there is a rally and there is a flag pattern here.
You can see, you can directly call it flag and pole and flag. If you see here, technically on daily time frame, it is given a reversal and retesting here, and again it can resume its upward journey. Okay, this is a technical problem. A support, if you want to find a support, then 350 is a good level. I'm not thinking that, I don't think that it will go below this easily. If goes, then it will be sideways for more time. Okay, Tata Tech. Let's see Tata Tech. हाँ, ये देखो टाटा टेक परफेक्ट, कल उसमें ग्रीन कैंडल आएगी 100%. 100% मीन्स इट्स नॉट श्योर, बट व्हाई आई एम सेइंग सीरीज. कभी भी कैसे मूव आता है, एक अंडरस्टैंड कर लो. अंडरस्टैंड दिस टेक्निक. फर्स्ट, कभी भी जब भी ब्रेकआउट आएगा, ऊपर जाएगा, एक ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद आफ्टर दैट ग्रीन कैंडल देयर विल बी सम स्टेबलाइजेशन. एक दो तीन साइडवेज कैंडल हो गई, इसी कैंडल के बीच में कैंडल हो गई, इनसाइड कैंडल हो गई. नहीं तो क्या होगा, इस कैंडल का जो बड़ी कैंडल होगा ना, उसका 50% एरिया को टेस्ट किया जाएगा. 50% एरिया के पास एक डोजी बनेगा, एंड देन अगेन इट विल बी, देयर विल बी अ रिवर्सल. तो देखो ऊपर गया, एक दो दिन का फॉल, नाउ डोजी स्टेबल, अनडिसीजन वेदर टू गो इन विच डायरेक्शन. हियर इज अ लो रिस्क सेटअप. व्हाट यू कैन डू, इस डोजी का हाई ब्रेक होने के बाद आप एंट्री ले सकते हो, नहीं तो प्रीवियस डे हाई का हाई ब्रेक होने के बाद, मीन्स 2 डेज का हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एंट्री ले सकते हो. स्टॉप लॉस यहाँ का होगा, लो रिस्क के साथ बड़ा गेन आप ले सकते हो, 100 और 200 पॉइंट फॉर 40 पॉइंट रिस्क. This is how you can trade in Tata Technology. Okay. Any other questions, or the section will end in 5 minutes? Okay, no other question, then we can end this session. If you have queries, then you can directly ask me. Okay, let's end this session. Okay, sir. Thank you. Yeah.